same result. I was on the point of disappearing into the land of not when something told me not to. It must have been those emergency electrical Impulses impulses again. again. But this was not the same as on previous occasions. This time I was not gasping for breath. I was simply not allowed to go to sleep. Sitting up once more immediately made me feel better. I could breathe freely and my chest felt fine. But as soon as I lay down, my Sinuses. sin, sinuses filled and my chest was odd. I I tried propping myself upright against the wall, but now I could not manage to relax enough to drop off. I could not put my finger on the reason, but I was afraid to go to sleep. A little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again. So I stayed awake all night. Satan took me to the Darchin Medical College, and following morning, the medical college at Darchin was new and looked like a monastery from the outside with a very solid door that led into a large courta- Courtyard. 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 We found the consulting room, which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor Tibetan doctor. Tibetan doctor who wore none of the pra- paraphernalia Paraphernalia. paraphernalia that I I had had been. I had been expecting. No, with coat, he looked like any other Tibetan with a thick pullover and woolly hat. When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion Sudden to aversion laying to down, laying down. he shot me a few questions while feeling the veins in my Veins in my wrist. wrist. It is it is a cold, he said finally through Satan. 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 A cold and the effects of altitude. I'll give you something for it. I asked him if he thought I had recovered enough to be able to do the Kora. Oh, yes, he said, you will be fine. I walked out of the medical college, col- cluck, क्या है? Collecting a brown envelope stuffed with Clutching a brown envelope. clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. I had a 5-day course of Tibetan medicine, which I started right away. I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. It tasted just like cinna, Cinnamon. cinna, Man. cinnamon. The contents of the lunchtime and bedtime packages were less obviously i- identifiable. Identifiable. Both contained small spherical brown pellets. Let's They looked suspiciously like sheep dung. But of course, I took them that night after my first full day's course. I slept very soundly like a dog, not a dead man. चलें ठीक
ऊपर के पैराग्राफ में दिखलाया था कि राइटर की तबीयत खराब हो गई थी, खांसी और जुकाम के मर्ज में मुब्तला था, नाक वगैरह जाम हो गए थे, उसके सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो वो सो नहीं पा रहा था। यहीं बैठ जाओ। तो आगे कहते हैं, आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन। जब वो बैठता था तो उसके चेस्ट में आराम मिल जाता था, लेकिन जो ही लेटता था तो चेस्ट की तकलीफ बढ़ जाती। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन। दोबारा मैं लेट गया और ट्राइड अगेन, सोने का कोशिश किया, क्योंकि रात का वक्त था, वो सोना चाहता था। सो ट्राइड अगेन, और सोने की कोशिश किया। सेम रिजल्ट, लेकिन बात वही रह गई। यानी जब मैं लेटता था तो तकलीफ बढ़ जाती थी। तो उसी को कहा कि आई ले बैक डाउन, जब मैं दोबारा लेट गया और सोने की कोशिश किया तो सेम रिजल्ट, नतीजा वही पहले जैसा रहा। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इनटू द लैंड ऑफ नोड। नोड का मतलब नींद। नींद की जमीन में गायब होने के किनारे पर था, यानी मैं सोना चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्लीप, ये पूरा तर्जुमा होगा उसका। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इनटू द लैंड ऑफ द नोड। नींद के सरजमीन में गायब होने के किनारे पे था, यानी मैं सोने के करीब था, मैं सोना चाहता था। When something told me not to do, लेकिन जब किसी ने कहा कि सो वो मत, यानी अंदर से मैं तबीयत चाहती थी सोने की, लेकिन तकलीफ की वजह से सो नहीं पा रहा। तो आई वॉज ऑन पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इनटू द लैंड ऑफ गॉड, मैं सोना चाहता था, जबकि समथिंग टोल्ड मी नॉट नॉट टू, जबकि कोई कहता था कि मत सो, यानी सो नहीं पाता। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल impulses अगेन। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल impulses अगेन, यानी इससे पहले जो उसको तकलीफ हुई थी, उसी तकलीफ को ये दोहरा रहे हैं। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल impulses अगेन। फिर जरूर वही हंगामी बिजली जैसे, इम्पल्सेस का मतलब होता है झटका, बिजली की झटके लगने वाली है, फिर वही तकलीफ हो रही है दोबारा। तो उसको यूं आप ताबीर करेंगे, इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन, फिर दोबारा वही तकलीफें हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, बट दिस वाज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स। ओकेजन्स का मतलब मौका, लेकिन पहले मरतबा में जैसा था बिल्कुल वैसी नहीं है। दिस टाइम आई वाजंट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, उसको जोर जोर से सांस नहीं लेना पड़ रहा है, मैं आराम से सांस ले रहा हूँ। दिस टाइम आई वाजंट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, मैं जोर जोर से सांस नहीं ले रहा हूँ। आई वाज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, सिर्फ बात इतनी है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आई वाज सिंपली नॉट टू अलाउड टू गो टू स्लीप, यानी सोने जाने की इजाजत नहीं मिल रही, यानी सो नहीं पा रहा। Sitting up one more immediately made me feel better. Sitting up once more immediately, फौरी तौर से जब एक मरतबा फिर मैं बैठ गया, फौरी तौर से एक बार बैठ जाना, मेड मी फील बेटर, उससे मुझे अच्छा महसूस लगा। यानी लेटने में तकलीफ बढ़ जाती थी, बैठने में तकलीफ कम होती थी। तो सीटिंग अप वंस मोर, एक इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब फौरी तौर से, तो फौरी तौर से एक मरतबा मजीद बैठने पे मेड मी फील बेटर, मुझको अच्छा लगा। सो आई कुड ब्रीथ फ्रीली, तो मैं बड़ी आजादी के साथ, यानी आसानी के साथ सांस ले सकता था। एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, और मेरी छाती की जो तकलीफ थी वो भी अच्छी हो गई, मेरी तकलीफ कम हो गई। एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, और मेरी छाती की तकलीफ कम हो गई। बट एज सुन एज आई ले डाउन, लेकिन जैसे ही मैं लेटा, माई सीनुसेंस फील्ड, तो ये जो नाक की जो नली है, सीनसेस मतलब होता है जिसमें कि वो हिस्सा जो खाली हो, जिसमें हवा वगैरह भर जाए। तो सीनसेस मतलब यहाँ पे दोनों नाक की नली, तो हमारे दोनों नाक के सुराख में फिल वो भर गई, यानी जाम हो गई। और माई चेस्ट वाज ओड, और हमारी छाती में फिर तकलीफ हो गई। ओड का मतलब ऑपोजिट हो जाए, उल्टा हो जाए।
तो अगर बराबर बराबर हालात हो तो उसको इवन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑड कहा यानी हमारी छाती की पहले जैसा नहीं था, वो और था यानी उसमें तकलीफ थी। आई ट्राइड प्रोपिंग प्रोपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल। प्रोपिंग का मतलब होता है किसी चीज का सहारा लेना। अपराइट अगेंस्ट द वॉल, बिल्कुल दीवार से, यानी मैंने अपने आप को दीवार के सहारे लगा दिया, दीवार पे टेक लगाया। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स एनफ टू ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ का लफ्ज कल भी गुजरा था, जिसका माना किया गया था स्लीप का। तो आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स एनफ टू ड्रॉप ऑफ। सोने के लिए बहुत ज्यादा मुझे इत्मीनान या आराम नहीं मिल पा रहा था, यानी मैं सो नहीं पा रहा। तो बट नाउ, लेकिन अब आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स एनफ, मुझे बहुत ज्यादा आराम नहीं मिल पाता तो ड्रॉप ऑफ सोने के लिए, इसलिए मैं सो भी नहीं पा रहा था। आई कुडेंट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन। मैंने अपनी उंगली को रीजन पर नहीं रखा, यानी वजह क्या है कि ऐसी तकलीफ हो गई, नींद क्यों नहीं आ रही है, इसकी वजह भी समझ में नहीं आ रही थी। कहता आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, उसकी वजह या उसका सबब भी समझ में नहीं आ रहा था। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन सोने में मुझको डर भी लगता था। सोने में डर क्यों लगता था? करा अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी, अंदर से एक आवाज आ रही थी जो मुझसे कहती थी कि इफ आई डिड, अगर मैं सो गया तो आई माइट नेवर वेक अप अगेन, तो फिर मैं बेदार दोबारा नहीं हो पाऊंगा, यानी मर जाऊंगा। सो आई स्टेड वेक अप अवेक ऑल नाइट, इसलिए उस तकलीफ की हालत में क्या किया, रात भर वो जगा रहा। आई स्टेड अवेक, मैं जगा रहा, यानी सोया नहीं, ऑल नाइट, पूरी रात। ओके, अब 3 की तकलीफ रही। अब अगले पैराग्राफ में अब ये डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो जो उनको एक ड्राइवर था सेटन, कहते हैं सेटन टुक मी टू द डर्चन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग। अगले सुबह को सेटन ने मुझे दर्चन मेडिकल कॉलेज ले गया। The medical college at the Derchan was new and looked like a monastery from the outside, with a very solid door that led into a large courtyard. दर्चन का जो मेडिकल कॉलेज था वो नया था, एंड लुक्ड लाइक अ मोनेस्ट्री, और एक खानकाह जैसा लगता था, फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, विथ अ वेरी सॉलिड डोर, जिसका दरवाजा बहुत मजबूत था। वेरी सॉलिड डोर, सॉलिड मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग, जिसका दरवाजा बहुत मजबूत था। दैट लेड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड, जिसके बाद इन उस दरवाजे के बाद क्या होता था, लार्ज कोर्टयार्ड, एक बड़ा ओपन सा हॉल खुलता था। दैट लेड, ले जाता था, इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड, एक बड़े से खुले हॉल के अंदर। तो आप ऐसे कह सकते हैं जिसमें बहुत बड़ा, बहुत मजबूत दरवाजा था, और उस दरवाजे के बाद एक बहुत बड़ा हॉल। We found the consulting room, which was dark and cold, and that occupied by the Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia. Paraphernalia मतलब खास लिबास होता है। तो जब वो डॉक्टर से मिलने जा रहा था तो उसका तस्वुर था कि डॉक्टर किसी खास लिबास में होगा, उसके लिबास को देख करके समझा जा सकता है कि यही डॉक्टर है, लेकिन वो किसी खास लिबास में नहीं था। दूसरी कहता है वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम, कंसल्टिंग मतलब मशवरे के रूम को हमने पाया, यानी डॉक्टर के रूम को पाया। विच वाज डार्क, जो तारीख था, एंड कोल्ड, बिल्कुल वहां पे ठंडा था, एंड ऑक्युपाइड बाय द तिब्बतन डॉक्टर। ऑक्युपाइड मतलब कब्जा किया, तो रूम पे कब्जा किया था किसने, तिब्बतन डॉक्टर ने, यानी उसमें तिब्बत का डॉक्टर था। हु और नन ऑफ द पैराफर्नेलिया, जो किसी खास तरह का लिबास वो नहीं पहना था। दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग, जो मुझे खास लिबास पहनने की जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के मुताबिक वो कोई खास लिबास नहीं पहना था। नो वाइट कोट, जैसे डॉक्टर लोग व्हाइट कोट डाले रहते हैं अपनी बॉडी पे, उसको कहते हैं नो वाइट कोट, किसी तरह का व्हाइट कोट नहीं था। ही लुक लाइक एनी अदर तिब्बतन, वो आम तिब्बत के तरीके से दिखाई देते, जैसे आम पब्लिक जिसे जाते थे वैसे वो तिब्बी डॉक्टर भी था, तिब्बत का डॉक्टर था। थिक पुलोवर, एक लंबा सा मोटा कोट पहने हुआ था। एंड ऊली हैट, और एक ऊली मतलब ऊन का बना हुआ टोपी पहने हुआ था। When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to laying down, he showed me a few questions while feeling a wince in my wrist.
जब मैंने अपने नींद न आने की निशानात उसको मैंने बताया, सिम्टम मतलब अलामत, एंड माई सडन अवर्जन टू लेइंग डाउन, और लेटने पे अचानक अपनी तकलीफ का मैंने उससे इजहार किया। अवर्जन मतलब दुख तकलीफ, अचानक लेटने पे अचानक जो तकलीफ होती थी उस तकलीफ का मैंने उससे बताया। तो क्या किया उसने, ही शूट मी अ क्वेश्चन, फ्यू क्वेश्चन, यानी ही आस्क्ड सम क्वेश्चन, उसने कुछ सवालात मुझसे किए। व्हाइल फीलिंग द विंस इन माय रिस्ट, रिस्ट का मतलब कलाई, विंस मतलब नस, तो हाथों की कलाई को पकड़ के या नसों को चेक पकड़ के चेक करते हैं, तो उसी को कहा कि हमारे कलाई के नसों को चेक करते हुए उसने कुछ सवालात किया। सवालात करने के बाद डॉक्टर जवाब देता है, इट इज कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रोट सीटेड। अब चूंकि जो राइटर था वो राइटर तिब्बत की जबान नहीं जानता था, ड्राइवर जो था वो तिब्बती जबान जानता था, इसलिए डायरेक्ट मरीज से गुफ्तगू ना करके उसके जो ड्राइवर था उससे गुफ्तगू किया। तो कहता है इट इज कोल्ड, ये कफ है, खांसी है। ही सेड, उसने कहा, फाइनली, आखिर आखिर में, थ्रू सेटन, सेटन के मार्फत, नहीं सेटन से कहता था फिर सेटन तर्जमा करके राइटर को बताता था, तो सेटन के मार्फत डॉक्टर ने उसे बताया, अ कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ द एल्टीट्यूड, खांसी हो गई है, और मजीद क्या है, क्योंकि आप जो एक हमवार जमीन है जहां से आप आए हो, तकरीबन आप 400-500 फीट ऊपर आप आ चुके हो, तो इसके इतनी ऊंचाई के पर आने की वजह से भी कुछ उसके असरात हैं। द कोल्ड है एंड द इफेक्ट्स ऑफ द एल्टीट्यूड, और ऊंचाई के कुछ असरात हैं, यानी हमवार जमीन पे नहीं हो बल्कि आप ऊंचाई पे आ चुके हो, यहाँ पे आने के बाद मौसम में कुछ तब्दीली आ गई है। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं उसके लिए कुछ आपको दूंगा, नहीं कुछ दवाएं दूंगा। I asked him if he thought I would recover enough to be able to do Quora. Oh yes, he said you will be fine. अब चूंकि इससे पहले पैराग्राफ में दिखलाया था कि ये जो इस सफर में गए थे, ये पहाड़ी पे गए थे, और पहाड़ी पे बताया था वहां जाके एक मजहबी सफर के लिए निकला था। वहां पे उनको तवाफ वगैरह करना था, जिस तवाफ के लिए अंग्रेजी वो तिब्बत का वर्ड है कोरा। कोरा का मतलब बताया था कि कोई भी चीज हो उसके इर्द गिर्द आप चक्कर लगावे, तो उसी चक्कर लगाने को उनकी जबान में कोरा बोलते थे, जिसको हम तवाफ करते हैं। तो ये राइटर कहता, आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा, आया ही थॉट, उनके ख्याल में, आई कुड रिकवर एनफ टू बी एबल टू द कोरा, कि मैं इस लायक हो जाऊंगा कि मैं कोरा कर सकूं। तो आई आस्क्ड हिम, मैंने डॉक्टर से पूछा, आया ही थॉट, क्या उनके ख्याल में, आई आई वुड रिकवर एनफ, मैं इस काबिल हो जाऊंगा, टू एबल टू डू कोरा, कोरा करने की काबिल, या कोरा करने के काबिल मैं हो जाऊंगा। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, ओ हाँ हाँ जनाब, आप हो जाओगे। जिससे उसने कहा, यू विल बी फाइन, आप तंदुरुस्त हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। I walked out of the medical college, clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. अब मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर निकला। बाहर निकलने की हालत में क्या था, क्लचिंग, क्लचिंग अ ब्राउन एनवेलप, ब्राउन मतलब भूरा, हमारे हाथों में भूरे रंग का एक लिफाफा था। क्लचिंग मतलब कैचिंग, पकड़ना, तो भूरे रंग का एक लिफाफा मेरे हाथ में था, स्टफ्ड विथ 15 स्क्रूज ऑफ पेपर्स, जिसके अंदर, स्क्रू मतलब ठूस ठूस का भर देना, उसमें रखा हुआ था फिल्ड, जिसमें 15 कागज के पुर्जे पड़े हुए थे, पुड़िया कह लीजिए बच्चे, 15 स्क्रूज ऑफ पेपर, 15 कागज की पुड़िया थे, यानी पुड़िया में दवाइयां करके रख दी थी। आई हैड अ 5 days कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन, तिब्बी दवाओं, 5 दिन की दवाएं, 5 दिन का खुराक हमारे पास था। सो आई हैड अ 5 day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन, तिब्बी मेडिसिन के 5 दिन का मेरे पास खुराक था। विच आई स्टार्टेड राइट नाउ, जिसको बिल्कुल अभी से मैं लेना शुरू कर दिया। अब लेने की कैफियत क्या थी, कहते हैं, आई ओपन एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, नाश्ते के बाद मैंने एक पुड़िया खोला, and found it contain a brown powder that I had to take with hot water. तो मैंने उसके अंदर क्या पाया, फाउंड इट, मैंने उस पुड़िया को पाया कि कंटेंट, उसके अंदर, कंटेंट मतलब किसी चीज पर शामिल होना, उसके अंदर था, क्या था, अ ब्राउन पाउडर, एक भूरे रंग का पाउडर था, दैट आई हैड टू टेक विथ हॉट वाटर, जिसको मुझे उसे गर्म पानी से लेना था। आई टेस्टेड इट, टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन, सिनेमन मतलब, बताओ,
सिनेमन का मतलब दालचीनी। ओके, तो इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन। ये दालचीनी के तरीके से इसका जायका था। The contents of the lunchtime and bedtime packages were less obviously identifiable. अब कहते हैं लंच टाइम और बेड टाइम। लंच टाइम यानी दोपहर का, बेड टाइम यानी शाम का। शाम का और लंच के टाइम का जो पैकेजेस, ये जो पुड़िया बना हुआ था, उस पुड़िये के में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। यानी कहना चाहता है कि दोनों दवाएं एक ही थी, शाम की और दोपहर की। So the contents of the lunch time and bedtime packages, दोपहर और शाम के पुड़िये की जो तो पुड़िया थी, वो लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइड, बहुत कम एक दूसरे में फर्क था, यानी एक ही तरह की दवाएं। बोथ कंटेन स्मॉल एस्फेरिकल ब्राउन पेलेट्स, दोनों के अंदर क्या थे, दोनों शाम और दोपहर और शाम की में क्या था, छोटी एस्फेरिकल गोल ब्राउन भूरा, पेलेट्स मतलब गोली, छोटी छोटी गोल भूरे रंग का गो, स्फेरिकल मतलब गोल, तो छोटे छोटे भूरे रंग का गोल गोलियां थी। दे लुक सस्पिशियसली लाइक शीप डंग, बिल्कुल सस्पिशियस मतलब सुबह में, मतलब यकीनी तौर से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कैसा लगता था वो, शीप डंग, वो जो क्या बोलते हैं उसको, बकरी के उसके मैगनी, वो है डंग। भेड़िए के मैगनी के तरीके से बिल्कुल वो दिखाई दे रहे थे। बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, लेकिन यकीनन मैंने उनका मैगनी के तरीके से, मतलब शेप तो वैसे ही था। बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, लेकिन यकीनन मैंने उन तमाम दवाओं को लिया। दैट नाइट आफ्टर माय फर्स्ट फुल डेज कोर्स, उस रात को एक दिन की दवा पूरी लेने के बाद, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली लाइक अ लॉग, बिल्कुल लकड़ी की लट्ठी के तरीके से पूरी नींद मुझको आई। यानी पूरे का तर्जमा आप कर ले, आई स्लेप्ट साउंडली, मैं मुझे गहरी नींद आई। नॉट अ डेड मैन, मुर्दे के तरीके से नहीं, मर नहीं गया था, सोया था और अच्छी नींद आई। तो इसको आप रिपीट करते हैं, समझ में भाई लोग? जी जी सर। ठीक है, तो वो डिफिकल्ट वर्ड्स कुछ मैं भेज दिया हूँ, उसकी मदद से इसको आप मैच कर लीजिए, दोबारा रीड कर ले आप, फिर हम कंप्यूटर पे आते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट।